بہت سارے لوگوں کا پولیس کے بارے میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام وقت پر نہیں کرتی، اور اگر کرتی بھی ہے تو بہت سست کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کرمنل قانون کے گرپ سے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید کرائم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ کیس ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں پولیس پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرتی ہیں، جیسے کہ یہ شبنم کا کیس، جس میں نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ، لیکن جس طریقے سے پولیس نے ایک ایک کڑے کو جوڑا اور اس پورے کیس کو سالو کیا، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ یہ کہانی ہے امروہہ ضلع کی۔ امروہہ ضلع میں ایک گاؤں ہے باون کیڑی، اور اسی گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی جس کے سب سے بڑے تھے ماسٹر شوکت علی۔ ماسٹر علی کے علاوہ اس پورے فیملی میں 7 اور لوگ رہتے تھے، جس میں اس کی بیوی ہاشمی، اس کا بڑا بیٹا انیس، اس کی بہو انجم، اور ان دونوں کا ایک 10 مہینے کا بیٹا عرش، ایک چھوٹا بیٹا راشد اور ایک بیٹی شبنم، اور ان سبھی کے علاوہ ایک کزن تھی جو ان لوگوں کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ تو کل ملا کے اس پورے فیملی میں 8 لوگ رہا کرتے تھے۔ پوری فیملی اچھی خاصی پڑھی لکھی اور پیسے والی تھی۔ ماسٹر علی جو تھے وہ ایک سرکاری کالج میں لیکچرار تھے۔ بڑا بیٹا انیس جو تھا وہ ایک جلندھر کی کمپنی میں انجینئر تھا۔ چھوٹا بیٹا راشد وہ میرر سے بی ٹیک کر رہا تھا۔ شبنم نے ڈبل ایم اے کر رکھی تھی اور ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ مطلب کہ اس پورے فیملی میں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اور اس فیملی کی باون کیڑی میں بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ مگر پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے نہ صرف پورے اس فیملی کو افیکٹ کیا بلکہ پورے باون کیڑی کی سوچ کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ 14 اپریل 2008 کی رات کی دیر لگ بھگ 2:30 بجے کے آس پاس گھر کی پہلی منزل سے شبنم کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ ایک دم چلا رہی تھی۔ شبنم کی آواز سننے کے بعد ان کے جو پڑوسی تھے وہ جلدی سے جلدی شبنم کے گھر کے پاس پہنچے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھر کا جو مین گیٹ تھا وہ اندر سے ہی بند تھا، اور شبنم ابھی بھی زور زور سے چلائی اور روئی جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ وہ آئے اور گھر کا مین دروازہ کھولے، جس کے بعد شبنم آتی ہے اور دروازہ کھول کر پھر سے پہلی منزل پر چلی جاتی ہیں۔ پیچھے پیچھے پڑوسی بھی اس گھر کی پہلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں they got shocked۔ وہ دیکھتے ہیں کہ 7 لاشیں پڑی ہیں اور گھر میں خون ہی خون دکھ رہا ہے۔ شبنم کی ماں، باپ، دونوں بھائی، بھابھی اور ایک 10 مہینے کا بھتیجا اور ایک کزن، ان سب کی لاشیں ایک بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور شبنم ان سبھی لاشوں کے بغل میں بیٹھ کر بے تحاشا رو رہی تھی۔ جس کے بعد شبنم سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا، تو اس نے بتایا کہ رات کو کچھ چور ڈاکو ٹائپ لوگ آئے تھے اور سب کو مار کر چلے گئے۔ اسی دوران ایک پڑوسی نے پولیس کو فون بھی لگائے، اور کچھ ہی دیر بعد حسن پور تانے کی پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ پولیس جب وہاں پر پہنچی اور انہوں نے ان سبھی لاشوں کو دیکھا تو ان کی پیروں زمین کھسک گئی، کیونکہ وہاں کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ جو 7 لاشیں وہاں پر پڑی تھیں ان میں سے اگر 10 مہینے کے بچے کو نکالا جائے تو باقی سبھی لاشوں کی گلے کو ایک تیز دھار والی چیز سے کاٹا گیا تھا۔ پولیس نے پہنچ کر سب سے پہلے اس جگہ کو سیز کیا اور اپنے سینئر کو اس کی پوری جانکاری دی۔ صبح ہوتے ہوتے یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور شبنم کے گھر کے اندر اور باہر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ جس نے بھی اس حادثے کے بارے میں سنا وہ اندر تک کام گیا۔ جس طریقے سے ایک ہی گھر کے اندر 7 لوگوں کو موت کی نیند اتارا گیا، اسے دیکھتے ہوئے لوگوں نے پولیس کے خلاف نعرے بازی شروع کی۔ لوگوں کے غصے کو دیکھ کر وہاں کی سرکار نے حسن پور تانے کے انچارج کو امیڈیٹلی سسپینڈ کیا، اور اس کیس کو انسپیکٹر آر پی گپتا کو دیا گیا، جو کہ امروہہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او تھے، کیونکہ ان کی امیج لوگوں کے بیچ کافی اچھی تھی۔ انسپیکٹر آر پی گپتا 15 اپریل 2008 کی صبح اس حادثے والے جگہ پر پہنچ گئے، مگر جیسے ہی ان لاشوں پر پڑی ہوئی چادر کو انہوں نے دیکھا تو ان کی دماغ میں ایک چیز کھٹکی، پر پھر انہوں نے لاشوں کا پنچنامہ کر کے ان سبھی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس حادثے میں ایک لوتی بچی شبنم سے پوچھ تاچھ کرنے کا فیصلہ کیا،
लेकिन शबनम बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। और जाहिर सी बात है, जिसने अपने घर के सभी लोगों को एक साथ खोया हो उसकी हालत क्या होगी ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इधर पुलिस के लिए परेशान ये थी कि शबनम के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो कुछ बता सके, इसीलिए पुलिस ने शबनम से थोड़ी बात करने की कोशिश की। तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से वो ऊपर छत पर चली गई। आधी रात के करीब कुछ लोग दीवार के जरिए पहली मंजिल पर पहुंचे और सभी को मारकर घर के मेन गेट से बाहर चले गए। पुलिस ने शबनम का बयान लेने के बाद उनके पड़ोसियों का भी बयान लिया और आगे तफ्तीश शुरू की, मगर इस केस के इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को शबनम के बयान से एक और चीज खटकी, और वो ये थी कि पड़ोसियों ने बताया कि वो जब शबनम की मदद करने के लिए पहुंचे तो जो घर का मेन दरवाजा था वो अंदर से बंद था, और शबनम ने जो बयान दिया था उसमें उसने ये बताया था कि जो कातिल थे वो घर का मेन दरवाजा यूज करके बाहर चले गए थे। तो अब सवाल ये था कि घर का मेन गेट अंदर से किसने बंद किया। इसके बाद पुलिस जो थी वो उस दीवार के पास पहुंची जिस पर शबनम ने बताया था कि चोर डाकू टाइप लोग जो थे वो इस दीवार के जरिए से घर के अंदर दाखिल हुए थे। वो पीछे की जो दीवार थी वो जमीन से करीब 14 फीट ऊंची थी, और इस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी ऐसे ही नहीं चढ़ सकता था। मगर पुलिस को वहां पर ना तो कोई सीढ़ी मिली और ना ही उस दीवार पर सीढ़ी की निशान। इसके अलावा शबनम ने यह भी बताया कि घर में नीचे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से वो ऊपर छत पर चली गई। हालांकि उसके घर में पंखा भी था और इन्वर्टर भी, और जब पुलिस ऊपर छत पर जांच करने के लिए गई तो वहां पर उन्हें कोई बिस्तर नहीं मिला। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि किसी भी इंसान ने मरने से पहले कोई हाथापाई नहीं की थी। और सबसे हैरान करने वाली जो रिपोर्ट आई वो ये थी कि उस 10 महीने बच्चे को छोड़कर बाकी सभी 6 लाशों को मरने से पहले किसी तरह की नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि इन सभी 6 लोगों के पेट में सूजन मिली थी और पेट के अंदर की स्किन भी लाल पड़ गई थी। वो 10 महीने का जो बच्चा था उसे किसी तरह की नशीली चीज नहीं दी गई थी, उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को जो शक हुआ था उन लाशों के ऊपर जो चादर थी, उन्हें जो चीज एक कट की थी, वो जो शक हुआ था वो बिल्कुल सही था। लाशों पर जो चादरें पड़ी थी वो बिल्कुल एक सही ढंग से रखी हुई थी, जिसका इस साफ मतलब था कि किसी ने भी मरने से पहले खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी। जबकि एक मरने वाला इंसान किसी भी कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश करता है, और उसके जिस्म पर निशान भी होते हैं, और उन पर जो चादरें पड़ी होती हैं वो भी सही ढंग से नहीं होती। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो सब पहले से ही बेहोश पड़े थे। इसके अलावा एक और सवाल उठा कि उस रात सभी लोग मौजूद थे, तो अगर ये बात मान भी ली जाए कि किसी बाहर वाले ने आकर सबको नशीली चीज दी, तो फिर शबनम इससे कैसे बच गई। खैर, पुलिस ने दोबारा पूरे घर में जांच की और उन्हें इस घर में एक बेहोशी की टैबलेट का एक पैकेट मिला। तो अब तक हुई तफ्तीश में शबनम ने जो कुछ भी बताया वो इन सब हालात से मैच नहीं हो रहा था, और पुलिस को ये बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों का जवाब सिर्फ शबनम ही दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि शबनम से एक बार और अच्छी तरह से पूछताछ की जाए। पुलिस ने शबनम के साथ बात करने के लिए 2-3 बार ट्राई की, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोग ऐसा होने नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए पुलिस भी माहौल शांत होने का वेट करने लगी, और इसी दौरान शबनम का बहुत ही ज्यादा रोने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया गया। और जब डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो इससे एक और नई चीज सामने आई, और वो ये थी कि शबनम प्रेग्नेंट है और इसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तो उनके मन में और सवाल पैदा होने लगे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम के पास था। दूसरी तरफ इस हादसे की खबर उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ तक पहुंच गई। उस वक्त उत्तर प्रदेश की मिनिस्टर थी मायावती, और जब उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला तो हादसे के तीसरे दिन
यानी कि 17 अप्रैल 2008 को मिनिस्टर मायावती खुद शबनम से मिलने के लिए चली आई। शबनम को दिलासा दिया और इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। एक बात और, मिनिस्टर मायावती की बावनखेड़ी गांव में पहुंचने से पहले एक और चीज हुई थी, और वो ये थी कि वो चाहती थी कि शबनम को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि वो अब फैमिली में अकेली रह चुकी हैं। मगर ये खबर जैसे ही इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मिनिस्टर की पीए से ये कहा कि वो शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए के ऐलान को अभी ना करें, क्योंकि उन्हें शक है कि इन सारे मर्डर में शबनम का भी हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले मुआवजे के तौर पर जो पैसे थे उनको कुछ दिनों के लिए डिले किया गया, और ये फैसला किया गया कि ये केस जब सुलझ जाए तब ये सारे जो मुआवजे के पैसे हैं वो शबनम को दिए जाएंगे। तो जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन यानी कि 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई, जिसकी वजह से इस पूरे केस का रूह ही बदल गया और उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया। हुआ ये कि पुलिस को अपने एक सीक्रेट एजेंट के जरिए एक टेप मिली। इस सीक्रेट एजेंट ने पुलिस को बताया कि इसी गांव में रहने वाले सलीम को अगर उठा लिया जाए तो ये केस अपने आप ही खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फौरन सलीम को ढूंढना शुरू किया, मगर सलीम इस गांव में उन्हें कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते इस गांव से 14 किलोमीटर दूर गजरोला पहुंची और आखिरकार 18 अप्रैल 2008 को पुलिस ने सलीम को गजरोला में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई। थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सलीम के साथ इंटरोगेशन किया। पहले तो वो नाना कर रहा था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने पुलिस के अंदाज में उनसे पूछा तो थोड़ी ही देर बाद सलीम ने सब कुछ बोल दिया। इसके बाद यूपी पुलिस फौरन शबनम के पास पहुंची और उसे उठाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर शबनम अभी भी वो अपनी पुरानी कहानी दोहराई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखती ही वो समझ गई और वो अपना गुनाह कबूल करने लगी। पुलिस को पूरी कहानी बयान की। पूरी कहानी कुछ यूँ थी कि इस हादसे के करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात इसी गांव में बावनखेड़ी में रहने वाले एक शख्स सलीम से हुई। इसके बाद इन दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही शबनम ने अपनी शादी करने का जो फैसला था वो अपने घर वालों के सामने रखा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम में आसमान जमीन का फर्क था। एक तरफ जहां पर शबनम की फैमिली रिस्पेक्टेड और वेल्थी फैमिली थी, तो वही दूसरी तरफ सलीम बस छोटा मोटा काम किया करता था। इसीलिए शबनम के फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं थे। मगर शबनम ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम के साथ अपने रिश्ते कायम रखे। और इसी दौरान एक दिन शबनम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, और एक बार फिर उसने अपने घर वालों को मानने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मगर शबनम ये ठान चुकी थी कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ सलीम से। अब यहाँ पर अगर वो चाहते थे तो वो भागकर भी शादी कर सकते थे और अपनी एक नई अलग दुनिया बना सकते थे। लेकिन इस प्लान में एक गड़बड़ थी। अगर वो ऐसा करते और भाग जाते तो वो कहाँ जाते, और इसी वजह से शबनम ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दें। इसके बाद तो उसे ना कोई रोकने टोकने वाला होगा और इस पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन भी बन जाएगी। इसके बाद शबनम ने सलीम के साथ अपनी ही घर वालों को मारने के लिए एक प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान में भी एक गड़बड़ थी, और वो ये थी कि ये 2 लोग घर के 6 लोगों को काबू नहीं कर सकते थे। इसीलिए तय किया गया कि मारने से पहले उन्हें किसी तरह से बेहोश किया जाए ताकि वो आसानी से अपना काम कर सकें। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के मुताबिक सलीम बेहोशी की दवा लेने के लिए अपने गांव से 35 किलोमीटर दूर पकवाड़ा पहुंचता है। वो अपने गांव से दवाई इसीलिए नहीं खरीदता ताकि उस पर किसी को शक ना हो। एंड यू नो दैट इन विलेज एवरीबॉडी नो ईच अदर
वेरी वेल। सलीम पकवाड़ा पहुंचकर वहां की एक मेडिकल स्टोर से बेहोशी की 10 टैबलेट लेता है और उसे लाकर शबनम को दे देता है। इधर होता है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद, जो कि छुट्टी लेकर घर आए हुए होते हैं, वो दोनों भाई एक साथ 14 अप्रैल 2008 को घर से वापसी के लिए निकल जाते हैं। बड़ी भाई को जाना था कंपनी और छोटे भाई को मैरिट। जब ये बात शबनम को पता चलती है तो वो ये सोचती हैं कि अगर दोनों भाई यहाँ से चले गए तो उनका प्लान जो था वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकी फैमिली में कोई एक भी शख्स जिंदा बच गया तो प्रॉपर्टी इसके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए वो अपने दोनों भाइयों को कॉल करती हैं और इस वक्त उसके दोनों भाई जो थे गजरोला तक पहुंच चुके थे। इसके बाद शबनम किसी चीज का बहाना करके उन दोनों को वापस घर बुला लेती हैं और उनसे कहती हैं कि आज के बजाय वो कल चले जाएं, और अपनी बहन की बात सुनकर वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद आती है 14 अप्रैल 2008 वाली रात। ये वो रात थी जिसे ना सिर्फ बावन कीड़ी के लोग बल्कि पूरे अमरोहा जिले के लोग आज तक नहीं बुला पाए हैं। 14 अप्रैल की रात शबनम के सभी घर वालों ने रात का खाना खाया। रात का खाना खाने के बाद शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और इसी चाय में शबनम ने बेहोशी की दवा भी मिलाई। इसके बाद शबनम ने वो चाय अपने 10 महीने के भतीजे को छोड़कर बाकी सबको पिलाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10 महीने का बच्चा चाय तो पिएगा नहीं। इसी बीच शबनम की सलीम से लगातार बात हो रही थी और जब सभी घर वालों ने चाय पीकर अपने बिस्तर पर बेहोश हो गए तो शबनम ने सलीम से कहा कि अब तुम आ जाओ। इसके बाद सलीम आधी रात के वक्त के करीब शबनम के घर पे पहुंचता है और अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाता है। इसके बाद शबनम ने अपनी माँ, बाप, दोनों भाइयों, भाभी और कजन का सर पकड़ा और सलीम ने उसका गर्दन काट दिया। लास्ट में बच्चा शबनम का 10 महीने का भतीजा, जिसका गला तो नहीं काटा गया, लेकिन शबनम के कहने पर सलीम ने उसका गला दबाकर उसको भी शांत कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए और शबनम ने सलीम को घर से बाहर भेज दिया और शबनम ने घर का जो मेन गेट था अंदर से बंद कर दिया। बाहर आने के बाद सलीम ने उस कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया और घर वापस चला गया। इधर शबनम सलीम को बाहर पहुंचाने के बाद अपनी घर वापस आती हैं और हाथ पैर धोने लगती हैं और कपड़े भी बदलने लगती हैं, क्योंकि उनके कपड़ों पर खून की छींटे पड़े हुए थे। तभी उसने एक बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। जब उसने चेक किया तो वो देखती हैं कि उसका 10 महीने का भतीजा अभी भी जिंदा है और वो जोर जोर से रो रहा है। दरअसल जब सलीम ने उसका गला दबाया था तो वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। तो जब शबनम ये देखा कि उसका भतीजा अभी भी जिंदा है तो उसने फौरन सलीम को फोन लगाया और आकर उसे दोबारा मारने के लिए कहा। तो सलीम ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब जो भी करना है तुम खुद करो। इसके बाद शबनम ने खुद अपने ही हाथों से अपने भतीजे का गला दबाकर उसे भी मार दिया और जब उसे तसल्ली हुई कि घर के सभी लोग मर चुके हैं तब रात के 2:30 बजे के करीब वो अपनी घर की पहली मंजिल की बालकनी से जोर जोर से रोना शुरू करती हैं। और उसके बाद क्या हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद उनको अगले ही दिन यानी कि 19 अप्रैल 2008 को ऑफिशियली अरेस्ट किया। पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट तो किया, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो थी वो थी सबूत इकट्ठे करना, क्योंकि पुलिस को दिया गया कोई भी बयान अदालत में कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए पुलिस ने सलीम की मदद से उस कुल्हाड़ी को ढूंढा जो सलीम ने बाद में तालाब में फेंकी थी और इसी के साथ साथ उन्होंने सलीम का फोन और उस कपड़ों को भी अपने कब्जे में लिया जिस पर खून की छींटे पड़े हुए थे। और इसी तरह पुलिस ने शबनम के भी जो कपड़े थे जिस पर खून की छींटे पड़े हुए थे उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा एक और चीज हुई कि पुलिस को शबनम के घर से एक और सिम कार्ड भी मिला। दरअसल सलीम और शबनम किसी और नंबर से बात किया करते थे जिसका सलीम और शबनम के अलावा किसी को पता नहीं था। तो जैसे ही पुलिस को वो सिम मिला उसने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। इस कॉल डिटेल से पता चला कि जिस दिन ये हादसा हुआ था यानी कि 14 अप्रैल 2008 उस शाम की तकरीबन 7:30 बजे से लेकर 2:09 तक ये दोनों एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे और इसी बीच इन दोनों ने एक दूसरे को 52 कॉल किए थे। मगर इस 7:30 बजे से लेकर 2:09 के बीच एक 31 मिनट का गैप था जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी।
जो कि रात 1:09 से लेकर 1:40 का वक्त था। और यही वो वक्त था जब शबनम और सलीम अपनी प्लान को अंजाम दे रहे थे। तो एक तरह से ये कॉल डिटेल भी इस केस में एक अहम सबूत थी। पुलिस सारे बयान और सबूत इकट्ठा करने के बाद सलीम और शबनम को अदालत में पेश करती हैं और अमरोहा ज़िले की अदालत इस सारे बयान और सबूत देखने के बाद जुलाई 2010 में इसे द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानती है और दोनों को फांसी की सज़ा सुनाती हैं। इसके अलावा पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सुलझाया उसके लिए अदालत उसकी तारीफ भी करती हैं, जो कि बहुत कम देखने को मिलती हैं। शबनम और सलीम को मौत की सज़ा सुनाने के बाद उसने कई बार इस फैसले को कई अदालतों में चैलेंज किया, लेकिन सभी अदालतों ने अमरोहा ज़िले की अदालत को सही ठहराया। अभी फिलहाल शबनम बरेली जेल में बंद है और वही सलीम जो है वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और दोनों अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इन दोनों के पास ऐसे कई कानूनी रास्ते हैं जिससे वो अपनी मौत की सज़ा को टाल सकते हैं।